तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। In fact, I'm feeling so happy and proud as you all know. I'm sure it's not only me who is feeling proud. I'm sure you have heard about the news that is being going all over the Pakistan. Yes, we are talking about five-time champion, EVO champion, none other than Arsalan Siddiqui or Arsalan Ash. Like if we talk about the gaming career in Pakistan, we all know that it is not really promoted in our country. पाकिस्तान में जो गेमिंग का करियर है वो इतना ज़्यादा इनफैक्ट गेमिंग को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। लाइक मैंने ये देखा है कि अगर हम अपने घर में बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट गेमिंग को एज अ करियर कोई परस्यू करते ही नहीं है। तो अगर हम अरसलान ऐश के बारे में भी थोड़ी सी बात इधर करें उनके बारे में, अगर मैं आपको बताती चलूँ, पहली बात तो हम उन्हें सबसे पहले ये जो टूर्नामेंट हुआ है 2024 EVO चैंपियन टेकिंग 8 ही हैव won it. In fact, you know the fun thing, the happy thing I would say that the player who was playing against Arsalan Ash was also a Pakistani boy, Atif Butt, and surely undoubtedly he given a tough competition to Arsalan Ash. And we congratulate both of the boys because they both from Pakistan, and it's such an amazing feeling to know that such a fine gaming skills are being found from Pakistan, and no doubt they both have performed insanely amazing throughout the tournament and made to the finals and finally got the champion trophy. अगर मैं आपको बताऊं that when I was watching this tournament, so I was like there were no tension in my mind that who is going to win because both are from Pakistan. So कोई भी जीतता अच्छा तो लगना ही था एंड फाइनली अरसलान सिद्दीकी जीत गए, तो मतलब रियली प्राउड ऑफ यू बडी. ही डिड सच अ इंसेनली फिनोमिनल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द tournament. And if we talk about Atif Butt, who was playing against Arsalan Siddiqui, so he really given tough time, and he is also कहते हैं ना धत्ती प्लेयर. अगर आपको धत्ती प्लेयर देखना है ना तो लाइक ये जो दोनों नाम है ना ये परफेक्टली फिट होते हैं. मैं तो कहूँगी कि अगर धत्ती से ऊपर भी कोई होता है ना, किंग ऑफ धत्ती या फादर ऑफ धत्ती प्लेयर, सो ये दे बोथ डिजर्व दैट टाइटल. लाइक उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एंड अरसलान Siddiqui is widely regarded as one of the greatest taken players of all time, and he has played a pivotal role bringing Pakistani fighting game community to the spotlight, no doubt. So really proud of them. Baki, if we talk about Arsalan Siddiqui background, so like कोई सोच भी नहीं सकता था because he's from a middle class family. The height of passion towards gaming since the very beginning, वो उनके खुद के वर्ड्स हैं कि व्हेन ही वाज अ 4-year-old किड, तो जब वो सोते थे हिज पेरेंट्स यूज्ड टू टेल हिम दैट कि जब वो उठते थे रात को 3-4 बजे तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता था एंड देयर वर गेमिंग जोन नियर बाय हिज होम इन लाहौर. सो वो वहाँ पर सोते हुए पाए जाते थे, तो ये उनके गेमिंग के लिए उनका क्रेज़ था. तो जाहिर सी बात है इट पेड ऑफ. लाइक उनकी गेमिंग की जो स्किल है और द वे ही प्लेज द गेम्स, so मतलब when he won the tournament, like I got goosebumps seriously. Like it was so proud moment. and होता है ना जब आपके कंट्री से कोई इस तरह से कोई वर्ल्ड वाइड जाके कुछ जीत के आए तो ये लाइक यू फील सो प्राउड एंड यू जस्ट फील लाइक यू आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई. सो यही बिल्कुल सीन था. एंड when he won, EVO champion! Oh my gosh! Yo! Yo! Unbelievable! Yo! Oh my God! When I talk about good ass Tekken, that is what I talk about. Good ass Tekken! 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 This is why I wake up for good fighting games. This is why I do it. Oh my God! Those last rounds were ridiculous. Five-time EVO champion. 5 times. when he won, after that he just did sajda to Allah, and that's our मतलब ये हमारा वे है. जब भी हम कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में तो हम सबसे पहले उसका जो क्रेडिट है जाहिर सी बात है हमारे अल्लाह ताला को देते हैं, हम खुदा की ज़ात को देते हैं, क्योंकि वही सब उसके हुक्म से सारी चीज़ें होती हैं. तो इट वाज सच अ स्वीट मोमेंट्स. बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के. एंड आफ्टर दैट ही हग्ड आतिफ बट, तो दैट ब्रदरली लव बिकॉज बोथ आर फ्रॉम सेम कंट्रीज, ब्रदर्स बाय अनदर मदर. तो यही कुछ सीन था, तो बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के.
एंड मी बीइंग अ गेमर, मतलब आई ऑल्सो, मैं तो गेमिंग लवर आप कह सकते हैं। मैं बचपन से गेमिंग, मतलब यूजुअली होता है लड़कियां इतनी ज़्यादा गेमिंग वगैरह में होती नहीं, गर्ल्स आर नॉट दैट मच इनटू गेम्स, बट आई वाज इवन माई आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट टू माई फीमेल फ्रेंड दैट शैल वी प्ले गेम्स, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में होता था कि मेकअप वगैरह, एसेसरीज वगैरह। मुझे भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लौंडा टाइप लड़की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट बीइंग अ प्लेयर गेमर मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करी। आपको मेरे चेहरे से लग रहा हो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस टूर्नामेंट के, जो पाकिस्तान के लड़के ने जीता। तो इट विल नॉट रॉन्ग टू से दैट अरसलान सिद्दीकी हैव अमेजिंग स्किल्स इन गेमिंग, सो प्राउड ऑफ यू। बाकी चलें अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अरसलान सिद्दीकी के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में, कि वो कहाँ से थे, किस तरह ये चीज़ें जो हैं आए तय पाई गई। तो अरसलान सिद्दीकी के बारे में, अरसलान ऐश के बारे में हम बात करेंगे। उनका थोड़ा बैकग्राउंड मैं यहाँ पे बताती चलूँ, क्योंकि वही बात है ना कि हमारे पाकिस्तान में गेमिंग करियर को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है। तो लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो नहीं जानते होंगे कि किसने क्या जीता क्या नहीं जीता। तो मैं आपको बताती चलूँ कि एक लड़का है जो लाहौर से बिलोंग करता है, उसका नाम अरसलान सिद्दीकी है, और वो लाइक गेमिंग, फादर ऑफ गेमिंग कहते हैं, फादर ऑफ गेम्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, धत्ती बिलियरी कहते हैं। तो वो वही चीज़ है बिल्कुल। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो उन्होंने वैसे तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स वर्ल्ड वाइड भी जीते हैं, लाइक फ्रॉम प्लेइंग एट गेमिंग आर्केड्स ऑफ हिज होम टाउन टू ईवो चैम्पियन वर्ल्ड वाइड। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। एंड ये मतलब इट्स रियली इंसेन, मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल सा है कि है ना, कि ही हैव वॉन 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन ईवो टेकन। तो लाइक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं तो कहूँगी कि मतलब बहुत ही खुश होने वाली ये बात है। और मी बीइंग अ गेमर आई एम जस्ट एंजॉइंग दीज मोमेंट्स टू द हाइट। जितना मतलब खुश हो सकती हूँ ना, मैं हो रही हूँ, क्योंकि मैं एक गेमर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक वैल्यू पता है। तो बहरहाल बात करते हैं इनके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में। तो अरसलान सिद्दीकी जो थे वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, जो और बचपन से इनको गेमिंग वगैरह का जो क्रेज़ था वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि इनका यहाँ तक ये सीन था कि ये रात को इनके घर के करीब जैसे गेमिंग जोन होते थे, तो ये क्या करते थे, इनके पेरेंट्स बताते हैं कि रात को जब 3-4 बजे वो उठ के देखते थे तो दरवाज़ा खुला होता था और वो इन्हें गेमिंग जोन में सोता हुआ पाते थे। तो यू कैन इमेजिन द क्रेज़ टुवर्ड्स गेमिंग, जो उनका क्रेज़ था कितना ज़्यादा था। ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टू दिस गेमिंग थिंग। बाकी एज यू ऑल नो, यहाँ पर पेरेंट्स थोड़ा इस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं करते, बट बकौल अरसलान सिद्दीकी के, उनको उनकी मदर ने बड़ा सपोर्ट किया। हालांकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, पर इट इज़ सो टफ, यू हैव टू मेक चॉइसेस, you can't focus on both of the things at the same time, your studies and your gaming career. So of course there must have been difficulties for him to make a choice, क्योंकि दोनों चीज़ें बंदा कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि when he started to play games internationally, he had to travel internationally, and for because of that you can't pay complete attention to your studies. So that's what happened to him. He had to choose either one of them, studies or gaming career. So because he was so sincere with his passion, so he just pursued his gaming career. And later on his parents were kind of regretting and upset about his choice, but he just decided to prove himself and he just did it. He is just known to be one of the best players in of Pakistan, एंड नाउ वर्ल्ड वाइड उनका नाम है। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, मतलब एक होता है ना इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाना। और क्योंकि उनकी स्किल्स बचपन से ही गेमिंग वगैरह में इतनी अच्छी थी, तो उन्होंने किसी तरह से, उनको अपने ऊपर एक कंफर्म था, लाइक उनको पक्का पता था मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया और रिजल्ट आपके सामने। कहते हैं ना, लगन सच्ची हो और आपका सच्ची में किसी चीज़ में पैशन हो, तो आपका जहाँ दिल लगे ना, आपको वो काम करना चाहिए। तो कामयाब होने में आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, और बस अल्लाह के करम की देर होती है, और वो भी उन पे माशाल्लाह हो गया। तो करियर इन्होंने किंग ऑफ फाइटर गेम सभी ने सुना होगा, उसमें भी इन्होंने इंटरनेशनली अपना नाम बनाया है। और 2019 में जापान में ईवो टूर्नामेंट खेला, फिर अभी रिसेंटली 2024 का टूर्नामेंट लास वेगास नोएडा में इन्होंने खेला और उसको भी जीत कर 5th टाइम। एक होता है कि आप अपने सिटी के कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो, तब भी बहुत सारे लोग आते हैं खेलते हैं, और जब आप कंट्री में भी खेल रहे होते हैं तो बहुत सारे एक से बढ़ के एक प्लेयर आ रहा होता है। और जब आप वर्ल्ड वाइड खेल रहे हो तो गेमर्स की कमी नहीं है, लाइक पाकिस्तान में इतने नहीं होंगे, पर आप वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो बहुत मतलब ज़बरदस्त किस्म के गेमर्स पाए जाते हैं, और सारे ने सब ने पार्टिसिपेट किया होता है। और ये जो ईवो टूर्नामेंट टेकन 8 था, इसमें भी जाहिर सी बात है पूरी दुनिया भर के बेस्ट से बेस्ट मतलब अच्छे से अच्छा प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया।
तो इसलिए ये ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जब इतने सारे कंपटीशन में इतने अच्छे-अच्छे गेमर्स हों और उसमें से आपकी कंट्री के ही 2 गेमर्स जो कि सबको पीछे छोड़ के फाइनल्स तक आए हैं और उसको जीत के भी आए टूर्नामेंट को, तो आई थिंक ये बहुत ही प्राउड की बात है और मैं सैल्यूट करूँगी इनकी परफॉर्मेंस को। बॉयज़ रियली डिड वेल and became a pride of Pakistan, kind of a gaming heroes of Pakistan, I would say. So anyways, we all are so happy for him and I wish both of them, especially both of our boys, Atif Bhatt and Arsalan Ash, we wish you all the best for further in future. I hope आप लोग इसी तरह शाइन करते रहें और पाकिस्तान को भी शाइन करवाते रहें. Baki, this video is I think enough for today and we will meet inshallah in another video. If you like the video, please do like and subscribe. We will meet in another video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.